कर्नाटका गुलबर्गा शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए दलित समन्वय संगठन के नुमाइंदों की जानिब से रियासती वज़ीर दाखिला प्रियंक खरगे के आरएसएस चीफ मोहन भागवत को लेटर लिखकर पूछे गए सवाल आरएसएस को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, इस बात को लेकर बीजेपी के मौजूदा एमपी रमेश जिगाजीनागी के कंट्रोवर्शियल बयान, एक दलित को आरएसएस से क्या मतलब, और दूसरी बात आरएसएस को जिसने भी छेड़ा वो नहीं बचा, इस बात को लेकर दलित संगठनों और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में नाराज़गी देखी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के तवस्सुत से रियासती वज़ीर आला डीके शिवकुमार को मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें आरएसएस के और बीजेपी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की बात कही गई। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪ. ಸೋಮ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ ದುಡ್ದದನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಚಂದ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇಂದ ಗಂಟು ಬಿದ್ದ ಅಂದಾಗ ಅವೇನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಡಿ. प्रियंका खरगे साहब तुम आगे बढ़ो, प्रियंका खरगे साहब तुम आगे बढ़ो। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ದೇಶವನ್ನು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಕರೋ, ಬ್ಯಾನ್ ಕರೋ. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗುಲಾಮ ರಮೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಣಿಗೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗುಲಾಮ ರಮೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಣಿಗೆ, ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಣಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका खरगे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संविधान विरोधी आरएसएसಗೆ संविधान विरोधी आरएसएसಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದಂತ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಬೆಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕು, ಬ್ಯಾನ್ ಕರೋ, ಬ್ಯಾನ್ ಕರೋ. ಜಾತಿವಾದಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ, ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, 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 ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗುಲಾಮ ರಮೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಣಿಗೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗುಲಾಮ ರಮೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಣಿಗೆ, ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಣಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ चप्पल वाला अच्छा है, होटल वाला अच्छा है, देश के लुटेरे कौन
कौन है? आरएसएस कौन है? देश के लुटेरे कौन है? आरएसएस कौन है? देशद्रोही कौन है? आरएसएस कौन है? बैन करो ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಜ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಜಗಳ ಹಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ನೋಂದಣಿ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಅನಾಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕತ್ತಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಸಂಸದರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕದಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಮಾತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮಲ್ಲಪ್ಪಯ್ಯ ಮೋಸ್ಮೆ. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। आज जो प्रोटेस्ट है वो एमपी जो प्रियंक जी के कॉन्स्टिट्यूशन राइट के खिलाफ जो बात किया है उसके खिलाफ जो है ना जो प्रोटेस्ट निकाले हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि आने वाले दिनों में तमाम कर्नाटक स्टेट में एक प्रोटेस्ट निकाला जाएगा। जो एमपी है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर जो बात किया है ये साबित करता है कि उनकी सोच किस तरह की हो गई है। ये देश जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, बी.आर. अम्बेडकर जी के सिद्धांत से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा, ना कि आरएसएस की आइडियोलॉजी से चलेगा। यहाँ पे दलित हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, तमाम धर्म के लोग हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वल राइट दिया जाता है। ना कि तुम कौन से कम्युनिटी के हैं, तुम कौन से कास्ट के हैं, उसके हिसाब से तुमको राइट दिया जाता है। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर जी हमेशा स्ट्रगल करे हैं, पूरी जिंदगी उनकी जो है ना पब्लिक के खिदमत में और कॉन्स्टिट्यूशन को संवारने में चले गई। और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे प्रियंक खरगे जी, हमारे होम मिनिस्टर जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट के तहत एक बीइंग होम मिनिस्टर ऑफ दिस कर्नाटका स्टेट जो पूछे हैं, सवाल करे हैं, उसका जवाब देने के बजाय उल्टा एक एमपी होकर एक होम मिनिस्टर को ये सवाल करते हैं कि तुम्हारे को क्या राइट्स है। ये तो राइट बी.आर. अम्बेडकर जी आज से 1947 में दे चुके हैं। ये इनको मालूम होना चाहिए। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए ऐसी गिरी हुई बात करते हैं एक होम मिनिस्टर के ताल्लुक से कि भाई तुमको क्या राइट्स है पूछने का। अगर होम मिनिस्टर नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेंगे आपको। ये संविधान में उनको इजाजत दी गई है कि तुम संविधान के दायरे में रहकर बात करिए। तुम अगर ये बोलेंगे तुमको कौन सी कास्ट है, तुम्हारी कौन सी कम्युनिटी है, तुमको पूछने का राइट्स क्या है। तो हम ये आवाम से, तमाम कर्नाटका स्टेट के आवाम से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, तमाम लोग मिलकर ये एमपी के ऊपर हम केस करेंगे। क्यों केस करेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट जाकर जो है ना एक होम मिनिस्टर को एक बात जो करे, एक कास्ट एंड कम्युनल बात जो करे नो, इसके खिलाफ जाते हुए एक मैं गुजारिश करूंगा तमाम हमारे कारपोरेटर जो 55 कारपोरेटर यहाँ पे जमा हो रहे हैं उसमें से हमारे जो है ये संविधान को मानते हुए 27 कारपोरेटर जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा ये प्रोटेस्ट होने के बाद एक केस भी करेंगे हम उसके ऊपर जाकर इंशाल्लाह। थोड़े दिनों से जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी ने उनके पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जो बाबा साहब के आइन को मद्देनजर रखते हुए उनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को निभाते हुए जो होम मिनिस्टर साहब ने जो आरएसएस को लेटर लिखा कि भाई आपकी इतनी पुरानी शाखा है, वो शाखा को आप किस तरीके से चलाते हैं, बल्कि उनको आरएसएस को पूछना तो एक मकसद है, जबकि उन्होंने कर्नाटक के होम मिनिस्टर है तो पूरे तंजीमों को पूछना है उनको। और उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी एक को पूछ रहे उन्होंने, आज वो 100 ईयर्स करे हैं पूरे हिंदुस्तान में बोलकर जो उनका जो
बात भाषण करना था, वो भाषण के हैसियत से होम मिनिस्टर साहब ने पूछा कि भाई आप 100 ईयर्स करे हैं तो कौन से संगठन से करे हैं, आपका संगठन जो संगठन रजिस्ट्रेशन है उसको आप मेरे सामने लाइए। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं प्रोटेस्ट करना, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं आपकी सेफ्टी के लिए, आपके जो भी मसाइल है मैं उसको देखना पड़ता है। क्यों बीइंग के होम मिनिस्टर, ऐसा नहीं कि उन्होंने चुप आपको सवाल करे, उनकी जो जिम्मेदारी में आता है तो उसके लिए उन्होंने पूछा है कि भाई आपके क्या रजिस्ट्रेशन है, आपके जो संगठन आपके संगठन जो काम करती है वो मेरे नॉलेज में लाई है, वाकई हिंदुस्तान के फेवर में है तो हम आपका साथ देंगे, हिंदुस्तान के अगेंस्ट है तो आपके हम खिलाफ ठहरेंगे। बीइंग होम मिनिस्टर उनका इंटेंशन ये है, वो आपको आरएसएस है, आप कोई और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो उनको वो टारगेट करना नहीं है। उनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को पूछे हैं तो आप उन्होंने जो पूछे उसका सवाल दी, उनका सवाल का जवाब दीजिए, ना कि हिंदुस्तान के माहौल को मत खराब कीजिए। आप और हम सब मिलकर हिंदुस्तान को बुलंदी पे लेके जाना है, हमारी जिम्मेदारी है हिंदुस्तान को बढ़ाना है, हमारे हिंदुस्तान का जो नाम सोने की चिड़िया थी उसको जिंदा रखना है, ना कि आप और हम लड़के हिंदुस्तान को खराब करना है। लिहाजा हमारे जो होम मिनिस्टर पूछे हैं आप उसी का जवाब दीजिए, दूसरी चीजें मत कीजिए। आप 100 ईयर से जब इस संगठन को चलाते हैं तो आप भी इस हिंदुस्तान के जिम्मेदार है, तो जो आइन बोलता है वो आप आइन को फॉलो कीजिए। आइन के खिलाफ जो भी देगा उसके ऊपर तो होम मिनिस्टर पूछेंगे ही। ये हम होम मिनिस्टर की हम स्टैंड लेते हैं और होम मिनिस्टर के साथ हैं हम। ऐसे होम मिनिस्टर हमारे को पहली बार हिंदुस्तान में देखने को मिले। कर्नाटक उनके लिए फख्र महसूस करता है कि वाकई जो बाबा साहब के जो आइन को उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान हो या कर्नाटक, सेकुलर जो जहन रखता है उनके साथ है। इतनी बात कहते अपनी बात को खत्म करता हूँ। आने वाले दिनों में हमारे होम मिनिस्टर को कोई भी अयल फैल बोलेगा तो हम बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। वो हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है तो इंडिविजुअल की जा रही है, ये इंडिविजुअल की जा रही है साहब। हमारे होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर किसी कांग्रेस के वो नहीं है, कर्नाटक के होम मिनिस्टर है। उनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका साथ देना। हम घर में बैठ के वाह नहीं, हम उनका साथ देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने हिंदुस्तान को और कर्नाटक के आइन को बचाने के लिए आए हैं बाहर, उन्होंने पर्टिकुलर किसी को टारगेट कर नहीं आए, हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए कोशिश करें, हमारी जिम्मेदारी है, हम उनके साथ हैं। टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Bednakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.